जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts. My today's topic is from chapter number 14, this is 10th biology, and the name of the chapter is reproduction. This is 10th biology, chapter number 14, and the name of the chapter is reproduction. So, my today's topic is reproduction in rabbit. Male reproductive system, right? Reproduction in rabbit, and this is male reproductive system. So, as far as male reproductive system is concerned, it has three major parts. One is accessory gland as well. So, you can say that there are four different parts present in the male reproductive system. Number one, a pair of testes. हम ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. द टेस्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट as gonad and are the site of the sperm production. ठीक है. So सबसे पहले a pair of testes are present in male reproductive system. Then there are some associated ducts, like sperms are produced in the testes. Then how they will be able to move from the testes to the outside the body. तो obviously वो कोई रास्ता लेगा, कोई ducts को use करेगा. So associated ducts are present in the system. Then external genitalia, and then accessory glands. So these are the parts of male reproductive system. Then male reproductive system, before discussing this thing, I want to show you the diagram which is present in your book as well. This same diagram is present in your book as well. Okay, let me take the pen. Okay, now look at this structure. This is labeled as testis. Singular is testis, and in case of plural, in the place of I over here we have E, testes, right? Plural में यहाँ पर E होता है. Okay, testes in case of males. Listen to me carefully, everyone. In case of males, जो testes होती हैं, they are present outside the body. ठीक है, ये abdominal नहीं होती. ठीक है, testes abdominal नहीं होती. These are present outside the body. They are sort of hanged out outside the body, or you can say that they are hanging out below the body. ठीक है, बट इन अ पैकेट ऑफ स्किन. ठीक है, एक पैकेट के अंदर होती हैं, स्किन इनके ऊपर चढ़ी हुई है ये बॉडी का ही पार्ट, मगर ये बॉडी के अंदर नहीं रह सकती. एक ख़ास किस्म के स्किन के पैकेट में रहती हैं, जिस पैकेट का नाम है स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रॉटम की क्या इंपॉर्टेंस है? स्क्रॉटम या टेस्टिस एब्डोमिनल क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म्स हाई टेम्परेचर सरवाइव नहीं कर सकते. ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्पर्म सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, हैंगिंग डाउन बिलो द बॉडी इन अ स्पेसिफिक पैकेट कॉल्ड स्क्रोटम. ठीक है, ये देख रहे हो आपकी बॉडी से बाहर है, और उसूलन से यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड यहाँ कहीं होना चाहिए था ना, जहाँ पे भी आपको रेड डॉट नजर आ रहा है, अगर ये एब्डोमिनल होती तो क्लोज टू द रिप्रोडक्ट यूरिनरी सिस्टम, मगर ऐसा नहीं है. ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. दिस इज समथिंग न्यू for all of the students. That is why they keep on going the questions के ये बॉडी से बाहर हैं. तो मैं आपको बता रही हूँ द रीजन बिहाइंड. टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम. एक बैग ऑफ स्किन के अंदर होते हैं ये, दैट हैंग्स बिलो द बॉडी. ठीक है, दे आर प्रेजेंट बिलो द बॉडी. क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, आई मीन जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, ये वो सर्वाइव नहीं कर सकते. सिर्फ ह्यूमन बींग के एंगल से ना सोचें, तमाम तर एनिमल्स में टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द body because sperms cannot survive at the body temperature. They need a little lighter temperature. Then each testis consists of seminiferous tubule. ये मैंने पहले भी बताया that each testis are basically the major structure present within the testis is called as seminiferous tubule. ये tubules हैं, ये पतली पतली ट्यूब्स की तरह की कोई चीज़ है, और बहुत सारी हैं. इनकी इनर लाइनिंग में जो सेल थे स्पर्मेटोगोनियम, which are spermatogonia by the way, gonium is singular, spermatogonia which are responsible for the production of sperms, means seminiferous tubules are responsible for the production of sperms, are the site of sperm production. Then these tubules are the site of sperm production. ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. अभी फिगर पे जाएंगे.
Okay, when sperms are mature, they accumulate in the collecting duct of testes and then pass to the epididymis. Now I'm going to your book. अब हम जो फिगर है ना वो आपकी बुक में से देखेंगे ताकि आपको तैयार करने में कंपैरेटिवली आसान हो। ओके, नाउ लुक एट दिस। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शायद क्लियर हो रहा है कि ये बॉडी से बाहर इस खास पैकेट में प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रोटम, और ये टेस्टिस है। टेस्टिस ये इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर देखो बाहर भी कोई डक्ट है। इस डक्ट का नाम है एपिडिडिमस। जैसे हमने बात की थी कि टेस्टिस के अलावा इसमें कुछ स्पेसिफिक एसोसिएटेड डक्ट्स भी शामिल हैं। तो ये तो आ गया आपके पास एपिडिडिमस, यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, देन फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दे विल एंटर इनटू द एपिडिडिमस, देन फ्रॉम एपिडिडिमस दे विल एंटर इनटू दिस ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट। ठीक है, this tube is called as sperm duct or vas deferens. That vas deferens will pass through the body, they will enter into the body. ठीक है ना, एपिडिडिमस भी बाहर ही है बॉडी से क्योंकि वो तो टेस्टिस के साथ अटैच्ड है। फिर स्पर्म डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द स्पर्म्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, वो बॉडी के अंदर वापस लेके आ रही है स्पर्म्स को, और अब ये गुजर के कहाँ से जाएंगे, यूरिनरी जो सॉरी जो उसका यूरिथ्रा है वहाँ से गुजर के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे। मतलब ये वही वाला रास्ता लेंगे जहाँ से मेल्स यूरिन पास करते हैं। मीन्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड sperms there is a same pathway which is used for both the secretions। ठीक है, sperm production भी और यूरिन प्रोडक्शन भी, दोनों चीज़ें इसी में से ही पास होके जाएंगी, यूरिनरी ट्रैक्ट में से ही पास होके जाएंगी। अच्छा, सो ये तो आपको नज़र आ ही रहा है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये जगह है दैट ओपनिंग जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। ठीक है, अब देख रहे हो आप नीचे से स्पर्म डक्ट भी उसी ओपनिंग पे आके अटैच हो जाती है। मगर अब हमें पता है कि यूरिन भी एसिडिक हो सकता है या यूरिन स्पर्म्स को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए एक वक्त में सिर्फ कोई सी एक ही चीज़ पास होगी। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको या तमाम तर मेल्स को ग्लैंड्स प्रोवाइड किए हैं। वेरी फर्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दैट प्रोस्टेट ग्लैंड इज हेल्पफुल इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोई भी ट्यूब में अगर एसिडिटी है तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, अपनी सिक्रीशंस स्पर्म्स के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी मिल्की सी सिक्रीशंस है, ये स्पर्म के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे स्पर्म्स इसमें एंटर हुए स्पर्म डक्ट से, तो उनसे के साथ ही ये ऐड हो जाती है ताकि स्पर्म्स की डेथ ना हो जाए बिकॉज ऑफ द एसिडिटी ऑफ द यूरिन। अब ये स्पर्म्स और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस आगे मूव करके जाने लगी। देन वी हैव अनदर ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड, जिसका नाम है सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये भी सिक्रीशंस हैं और ग्लैंड है तो सिक्रीट करेगा कुछ, और ये क्या सिक्रीट करेगा, ये फूड प्रोवाइड करेगा टू द मूविंग स्पर्म्स। उन स्पर्म्स को फ्रुक्टोज की फॉर्म में या ग्लूकोज की फॉर्म्स में वो फूड प्रोवाइड करेगा। मीन्स नाउ द जो लिक्विड बनता जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, स्पर्म्स, सिक्रीशंस फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। अब ये आगे चले और यहाँ पे एक और ग्लैंड हमें नजर आ रहा है, कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, कूपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन भी इन दोनों सिक्रीशन और स्पर्म के साथ मिल जाती है, एंड दैट सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द डक्ट, ताकि स्पर्म्स आसानी से इन तमाम तर ट्यूब्स में से बाहर मूव कर जाएं। ओके, आसानी से मूव कर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें अच्छा पेयर ऑफ टेस्टिस वाला मैंने बता दिया आपको पॉइंट्स, प्रोडक्शन वाली स्लाइड भी दिखा दी, फिगर भी हम वहाँ से देखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ से देखते हैं। पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए हैं। व्हेन स्पर्म्स आर मैच्योर दे एक्यूमुलेट इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ टेस्टिस एंड देन पास टू एपिडिडिमस। ये रास्ता मैं अभी आपको फिगर से दिखा के आई थी कि कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो गए, एपिडिडिमस में कलेक्टिंग डक्ट में गए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, या आप साथ में ना फ्लो चार्ट सा बना लो।
टेस्टिस के नीचे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर एपिडिडमस, फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है, ये सारा रास्ता है। एपिडिडमस, फ्रॉम एपिडिडमस स्पर्म्स मूव टू स्पर्म डक्ट कॉल्ड वास डेफरेंस। स्पर्म डक्ट का एक और नाम वास डेफरेंस भी है। बोथ स्पर्म डक्ट्स ज्वाइन यूरिथ्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर अटैच्ड है बिल्कुल यूरिथ्रा के उसी पॉइंट पे ये दोनों डक्ट्स भी यूरिटर को के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर्स यूरिथ्रा के साथ दोनों स्पर्म डक्ट्स यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट हुई, यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, ये मैंने बताया कि एक ही रास्ते से दोनों पास होंगे। फिर हमने सीमन अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम इसको पढ़ चुके हैं। सीमन इज द मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड, मतलब स्पर्म्स और जो फ्लूइड डिस्कस किया था मैंने थोड़ा सा, इट कंटेन्स 10% स्पर्म्स एंड 90% fluid. As the sperms pass down the ducts from testes to urethra, the associated glands add various secretions. Now, first of all, seminal vesicles provide nutrients for sperm. Then, prostate gland neutralizes the acidity of the fluid. Then, Cooper's gland lubricates the duct. ये सारा मैं अभी आपको दिखाया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिगर दोबारा एक नज़र देख लेते हैं ताकि हम ये सारा सब स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लें। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि इस फिगर में आप चेक कर लें एक दफ़ा फिर, सीमन क्या होता है। सीमन एक वो जो लिक्विड बनाना जो जिसमें तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस प्लस स्पर्म्स, इट इज़ कॉल्ड एज सीमन। ठीक है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 10% स्पर्म्स हैं और 90% ये सिक्रीशंस हैं तमाम तरह ग्लैंड्स की। जिसमें पहला ग्लैंड हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता था, इस ट्यूब की एसिडिटी को रिड्यूस करता था ताकि स्पर्म्स की डेथ ना हो जाए। फिर सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशंस आती थी, वो क्या करती थी, वो फूड प्रोवाइड कर रही थी कहीं स्पर्म्स की एनर्जी लो होने की वजह से डेथ ना हो जाए। फिर तीसरी कूपर्स ग्लैंड है, वो स्पर्म्स की मूवमेंट को इजी बना रही हैं। ठीक है, लुब्रिकेट कर रही हैं डक्ट्स को ताकि आसानी से स्पर्म्स उनमें से मूव कर जाएं, ये ना हो फ्रिक्शन की वजह से उनकी मूवमेंट की वजह से उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया है, लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन write the questions in the comment. I thank you all for the patience listening, and if you have any question you can ask me freely. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।